I request the Honorable Chief Guest and dignitaries on the dais to kindly mark the official commencement of this event by lighting of the lamp. लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. Let the light dispel all darkness today. Let it sow the seeds of hope, prosperity, peace, and success all around. May this light ignite minds with the revolutionary ideas and fill the hearts with a commitment to the greater good of our nation. Let the light brighten our tomorrow. Ladies and gentlemen, a loud applause for all the dignitaries whom have lightened the lamp. May this light stay in our hearts forever and keep lighting our way towards a brighter and a more beautiful future. What a beautiful moment to see something light up. What a beautiful moment to see darkness getting dispelled. Thank you so much. As an expression of our boundless gratitude, I request the esteemed Vice Chancellor, SCOST Kashmir, Professor Nazir Ahmed Ganai Saab, to present tokens of affection to the Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir. Sir, it's always an honor to have you here. It's always an honor to be appreciated and guided by you. Thank you so much for joining us here today and for all the encouragement. Thank you for gracing the occasion by your presence. Thank you very, very much, sir. I now request Sri Shailendra Kumar ji, Principal Secretary, APD, UT of Jammu and Kashmir, to felicitate Sri Atal Dullu Saab, respected Chief Secretary, Government of Jammu and Kashmir. Thank you so much, sir, for joining us here today. It's a pleasure to have you here, sir. Your guidance is invaluable to us. Now I'll request Dr. Naseem Javed Chaudhary Saab, MD, JK, HPM, for felicitating Shri Krishnan Ji, Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology. Sir, it has been indeed an honor for us to have you all here. Ladies and gentlemen, a loud applause. I'll now request Shri Iqbal Chaudhary Ji to felicitate Dr. Mangala Rai Ji, former DG ICAR and Chairman Apex Committee. Ladies and gentlemen, a loud applause. I'll now request Professor Harun Naik Saab, Director Research, SCOST Kashmir, to felicitate Chairman doubling the Farmers Income Commission and member Apex Committee, Dr. Ashok Dalwai Ji. Thank you, sir, for gracing the occasion. For the formal welcome of the dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, please welcome Shri Shailendra Kumar Ji, Principal Secretary, Agriculture Production Department, UT of Jammu and Kashmir, for his welcome address. A loud applause, ladies and gentlemen. Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Ji, respected Chief Secretary, Shri Atal Dullu Ji, distinguished guests of honor, Shri Krishnan Ji, Secretary, Ministry of Electronics and Information, Dr. Mangala Rai Ji, former Director General ICAR,
Dr. Ashok Dalwai ji, former CEO of National Rainfed Area Authority, esteemed farmers and colleagues. It is an honor and pleasure to welcome you all to Kisan Unnati Sammelan. Today we are here to witness a landmark event, launch of 500 Kisan Khidmat Ghars all across the UT and the software platform that is expected to revolutionize agriculture extension operations in J&K. Kisan Khidmat Ghar is a pioneering and unique concept under Holistic Agriculture Development Program. These centers are designed to transform extension and outreach capabilities of agriculture and allied sector by the department and the government. By acting as one-stop hubs, KKG would provide with seamless access to a wide range of services from input booking, scheme application, advisory dissemination, expert consultation, so on and so forth. This initiative would bridge significant gap in extension worker to farmer contact ratio, enhancing our ability to provide timely and effective support to our farmers. The role of Krishi Uddamis, or as we call agri-entrepreneur, is central to the success of KKGs. These trained facilitators will be the backbone of each center, ensuring that farmer receives necessary extension and knowledge support. Their dedication to delivering services efficiently would empower our farmers with the tools and knowledge. And this knowledge would be utilized for sustainable good agriculture practices. The Holistic Agriculture Development Program, with its various projects, stands as a testament to our commitment to transform the agriculture sector towards sustainable growth and significantly improving livelihoods of our farmers. The launch of KKG is a pivotal step in this journey, ensuring that HADP reaches to grassroots level. On this occasion, I extend a warm welcome to the Honorable Lieutenant Governor of J&K. Sir, your visionary leadership and unwavering commitment to the welfare of our farmers community have been instrumental in conceptualizing the Holistic Development Agriculture Program. The launch of the KKG today is a direct result of your dedication to transforming the agriculture landscape of Jammu and Kashmir. To our Chief Secretary, Shri Atal Dullu, sir, your strategic planning and tireless efforts have been crucial in making HADP a reality. Your leadership has ensured that the program addresses core needs of our farmers, paving the way for sustainable agriculture growth in the UT. I am also delighted to welcome Shri S. Krishnan, Secretary MeitY. Your expertise and support in integrating technology with agriculture have been invaluable, sir. Under your guidance, MeitY and BISEG-N have been pivotal in advancing AI technologies, Internet of Things, and bolstering India's electronic sector, ensuring our country at the forefront of innovation, and we have been immensely benefited while creating KKG software platform in J&K. A special welcome to Dr. Mangla Rai ji, distinguished agricultural scientist and former DG ICAR. Your pioneering work in agriculture research and development has set a benchmark for all of us. Your leadership at ICAR has led to numerous advancements in crop science and sustainable agriculture. Those advancements still continue to inspire our efforts in improving agricultural practices. Your role and effort in designing HADP would never be forgotten in J&K. Keep us guiding, sir, in implementation of HADP as chairman of the Apex committee of this project. To Dr. Ashok Dalwai, sir, former CEO,
NRA and chairman of the empowered body of doubling the farmers' income. Your visionary work in the field of rain-fed agriculture and your leadership in doubling farmers' income have been transformative. Your strategies and policies have significantly contributed to enhancing the resilience and productivity of rain-fed areas across India. Your contribution in HADP formulation have been immense. Your regular guidance in implementation of HADP are invaluable. We are immensely grateful to MeitY and Vizag N for their help in developing KKG software application, which will be launched today. This innovative platform will play a crucial role in providing comprehensive support to our farmers. We look forward to your continued support in further refining and enhancing the software to meet the evolving needs of our agriculture community. Today, as we launch Kisan Khidmat Ghars and the software platforms, we are taking a significant step towards a brighter and more prosperous future for agriculture in J&K. Let us work together, harnessing the power of innovation, technology, and dedicated service to create a sustainable and thriving agriculture sector. To our team who have made this event possible today, and they are implementing HADP in field. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया अगर समंदर तलाश कर. I again welcome you all to the event today and thank you for your unwavering support for this transformative journey. Together, we will achieve new heights of agriculture excellence and farmers' prosperity. Thank you. Thank you so much, sir, for the very warm welcome. The Kisan Khidmat Ghar initiative has been taken up to provide an all-in-one solution to the farming needs. Therefore, we present to you a delightful animated walkthrough about the various services available at this Kisan Khidmat Ghar. And right after, Dr. Anjum Andrabi, Technical Officer APD, and Miss Pranjal, Miss Pranjal, Consultant PMU HADP, shall present to you a detailed demonstrative presentation. Technical team is requested to play the animated video. ये है अमन, हमारे हसीन जम्मू कश्मीर के एक मेहनती किसान. एक और दिन, एक और मुसीबत. पहले कहाँ जाऊं? बीज लेने, खाद लेने या फिर सरकारी दफ्तर नई स्कीम की जानकारी लेने? मुझे उस नई स्कीम के लिए अप्लाई करना है, लेकिन ये फॉर्म इतने उलझे हुए हैं. खेत में फसल कटाई के लिए मशीन भी लानी है और खेत में पेस्ट अटैक का भी डर है. मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं. अरे किसान भाई, लगता है आपको मदद चाहिए. मैं हूँ केकेजी, आपका अपना किसान खिदमत घर. मैं आया हूँ आपकी सारी खेती की परेशानियां दूर करने. एक घर मेरी मदद कर सकता है? ओहो, मैं कोई आम घर नहीं हूँ. मैं आपकी खेती की सारी जरूरतों के लिए एक ही जगह हूँ. देखिए जरा, बीज या खाद चाहिए, मेरे पास यही है. फसल कटाई के लिए मशीन चाहिए, मेरे पास यही उपलब्ध है. सरकारी स्कीम्स के बारे में कंफ्यूजन है, मेरे पढ़े लिखे कृषि उद्यमी आपको फॉर्म भरने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं, वो तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन भी ऑनलाइन कर देंगे. पेस्ट अटैक का डर है, हमारे एक्सपर्ट आपको फौरन सलाह दे सकते हैं. और ये सब कुछ नहीं है, मैं आपको कर्जा दिलवाने, नए हुनर सिखाने और भी बहुत कुछ करने में मदद कर सकता हूँ. ये तो कमाल है, लेकिन ये बहुत महंगा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं. जम्मू कश्मीर की सरकार पूरे यूटी में मेरे जैसे 2000 घर बना रही है. आपको बस हमारी सेवाओं का लाभ लेना है. आप घर बैठे भी ऐप द्वारा इन सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं. किसान खिदमत घर की वजह से अमन जैसे किसान अब एक ही जगह पर सारी मदद पा सकते हैं. ये जम्मू कश्मीर की खेती के लिए एक नई सुबह है. तो जम्मू कश्मीर के किसानों, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज ही अपने करीब के किसान खिदमत घर पर आइए. आओ मिलकर तरक्की करें.
किसान खिदमत घर, खेती के इल्म का आपका घर। सलाम आदाब एवरीवन। कैसा लगा आपको किसान खिदमत घर का इंट्रोडक्शन? शानदार था ना? बिल्कुल था, लेकिन मुझे लगता है अमन को अभी भी कुछ मदद की जरूरत होगी और शायद वो बार-बार किसान खिदमत घर तो नहीं जा पाएगा। हाँ, ये एक अच्छा मौका है अमन और उस जैसे किसानों को डिजिटल केकेजी ऐप के बारे में बताने का, जो हमेशा उनके साथ रहेगी। अरे वाह, मैं तो इस अनोखे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये केकेजी ऐप हमारे किसान की जरूरतों का सलूशन है। अंजुम जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मगर रजिस्टर होना बहुत ही आसान है। बस रजिस्टर बटन पे क्लिक करो, अपने बारे में और अपनी फार्मिंग के बारे में कुछ सवालों का जवाब दो और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये तो काफी आसान लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद किसान अपने फार्म की डिटेल्स भर सकता है। ऐड फार्म के बटन को प्रेस करके किसान एक या एक से ज्यादा फार्म ऐड कर सकते हैं, और अगर किसान के फार्म अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी हो तो भी मैप पे जाके वो उन्हें ऐड कर पाएगा। इसके बाद फार्म की फसलों और पैदावार की इंफॉर्मेशन भर दीजिए और बस आपका फार्म ऐड हो जाएगा। अब हम डेमो दिखाते हैं कि कैसे इस फार्म को अमन अपने मोबाइल पे देख पाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अमन को होम स्क्रीन पे ही उसके फार्म की लोकेशन जो गांधरबल में है और वहां का टेम्परेचर और मौसम के बारे में जानकारी मिल जाती है, और यहीं पे टेम्परेचर और मौसम की जानकारी से उसको स्कैब की रिस्क के बारे में भी पता जाता है। तो अगर वो डिटेल्ड वेदर देखना चाहे तो वो आज, कल और अगले हफ्ते में कैसा मौसम रहेगा उसकी लोकेशन पे वो भी देख पाएगा। इसके अलावा अगर फार्म उसके 2 या 2 से ज्यादा फार्म हो तो उनको बताऊंगी कि जब मेरी लास्ट टाइम अमन से मुलाकात हुई थी, वो एप्पल्स उगाना चाहते थे, लेकिन शुरू कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा था। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उसे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, ये ऐप उसकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन देगा। अमन ऐप पर ही सेब और बहुत सारी फसलों के बारे में पढ़ भी सकता है और ये फार्मिंग गाइड्स अपने फोन पे डाउनलोड भी कर सकता है। जैसे इस डेमो में हम देख सकते हैं, ऐप में ही फार्मिंग गाइड्स अवेलेबल है अलग अलग डिसिप्लिन्स की, और अगर वो हॉर्टिकल्चर में जाके एप्पल पे क्लिक करेगा तो एप्पल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। तो अगर वो एप्पल की वैरायटी जानना चाहता है तो ये सारी वैरायटीज वो अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकता है और उसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकता है। वाह, इस ऐप ने तो काफी इंफॉर्मेशन दे दी, अलग अलग एप्पल वैरायटीज, प्लांटिंग प्रोसेस और नर्सरीज के बारे में। लेकिन प्लांटेशन कब स्टार्ट करना है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ऐप में फार्मिंग कैलेंडर है जो हर साल हर महीने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं। आप डेमो में देख सकते हैं कि बस फसल, साल और महीना सिलेक्ट करो और फार्मिंग ऑपरेशंस की जानकारी मिल जाएगी। ये मैंने फार्मिंग कैलेंडर सिलेक्ट किया तो कश्मीर में गांधरबल में उसका जो टेम्परेट जोन है, हॉर्टिकल्चर में वो एप्पल और पेयर का 2024 का अगस्त का जो फार्मिंग कैलेंडर है उसको नजर आ जाएगा और वो उसको पढ़ पाएगा और अपने ऐप में सेव भी कर पाएगा। ये कैलेंडर देख के तो अमन अब प्लांटेशन फरवरी में ही स्टार्ट करेगा। अंजुम जी, आप जानते हैं कि अमन को मार्केट से सीड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लांट्स लेने में काफी मुश्किल आती है क्योंकि उसे उनकी परख ही नहीं है। क्या आप इसका कोई सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ जरूर, ये वाला फीचर ऐप में इनबिल्ट है। ऐप फार्मर के नियरेस्ट रजिस्टर्ड इनपुट डीलर का लिस्ट फार्मर को उसके मोबाइल नंबर के साथ बता सकता है और मैप पे फार्मर को गाइड भी कर सकता है। इसके अलावा फार्मर ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है जो उसके कृषि उद्यमी उसके केकेजी में डिलीवर करेंगे। जैसा आप डेमो में देख सकते हैं, अगर आप फार्म इनपुट्स पे क्लिक करें
तो अलग अलग सीड्स, वेराइटीज, उनके फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फ्रूट नर्सरीज मिल जाती हैं। तो अगर अमन को किसी फ्रूट नर्सरी पे जाना है तो उसकी नजदीकी फ्रूट नर्सरीज वो मैप पे भी देख पाएगा और उनको उनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन उसको साथ में ही दिख जाएगी। ऐसे ही वो अलग अलग इनपुट्स, चाहे फर्टिलाइजर हो, फर्टिलाइजर के डीलर्स, उनकी इंफॉर्मेशन भी जान सकता है और बुक थ्रू केकेजी के ऑप्शन को लेके वो सारी इनपुट सर्विसेज अपने केकेजी पे ही डिलीवर करवा सकता है। अब तो अमन को अच्छे क्वालिटी के इनपुट्स आराम से मिल जाएंगे, पर फिर और एक दिक्कत है ना, अमन अकेला है और उसे टेक्निकल सपोर्ट या फील्ड में हेल्पर्स चाहिए होंगे। क्या वो ऐप से भी ये सब हायर कर सकता है? बिल्कुल, ऐप के थ्रू अमन मशीनरी और एक्सपर्ट वर्कर्स दोनों हायर कर सकता है अपने बाग के मुख्तलिफ टास्क के लिए, जैसे प्रूनिंग या शाख तराशी, ग्राफ्टिंग या पैबंद और बडिंग इत्यादि के लिए। बस जैसा आप डेमो में देखेंगे, हायर सर्विस पे क्लिक करें और जो भी सर्विस चाहिए यहाँ पे, चाहे कस्टम हायरिंग सेंटर ढूंढना हो, कोल्ड स्टोर ढूंढना हो या हॉर्टिकल्चर देखना हो, तो उस पे क्लिक करें और ऐप आपको आपके नजदीकी कस्टम हायरिंग सेंटर्स, उनकी लोकेशंस और वहां कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देख सकती है। उसके अलावा आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे बुकिंग भी प्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको हॉर्टिकल्चर वर्कर्स जो प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग के एक्सपर्ट होते हैं उनके बारे में जानना हो तो आप उनकी लोकेशन ऐप में देख सकते हैं और उनको कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे दूसरे एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड के फार्मर्स हैं उनके लिए प्राइवेट एआई वर्कर्स, शीप शेयरर्स, सिल्क रीलिंग यूनिट्स इत्यादि इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अरे ये तो कमाल है, ये ऐप कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद अगर अमन को किसी सिचुएशन में किसी की मदद चाहिए होगी तो वो क्या करेगा? समझिए अगर कोई पेस्ट अटैक हो जाए तो वो क्या करेगा? इसमें चिंता की कोई बात नहीं। ऐप के थ्रू वो डायरेक्टली एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकता है, उनसे चैट कर सकता है या ऑन साइट कंसल्टेशन रिक्वेस्ट कर सकता है। वो एआई चैटबॉट और सपोर्ट और एफएक्यू सेक्शन भी चेक कर सकता है। अब हम आपको एक कॉल एन एक्सपर्ट का डेमो दिखाते हैं। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जनाब मोहम्मद सुल्तान बागू, मैं जेलबल से रेलवे में रहता हूँ। जी मैंने अपने बागों में हाईटेक भी लगाया है, लेकिन हाईटेक के दरमियान में मैंने कुछ इंटरक्रॉपिंग साग का या और किसी चीज का लगाया उसके बीच में, ताकि आमदन बढ़ जाए। तो मुझे ये गुजारिश है आपसे कि मैं कौन सा फसल इसके बीच में लगाऊं जिससे मुझे इससे ज्यादा फायदा मिल जाए, ताकि पेड़ को भी नुकसान ना हो जाए और सब्जी को भी नुकसान ना हो जाए। जी मोहम्मद सुल्तान, आपने हाईटेक कब लगाया? मुझे 5-6 साल हो गए, 8 साल लगभग 8 साल। हाईटेक में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आपको रिकमेंड करता है सीडलेस क्यूकम्बर, टोमेटो, बेल पेपर, चेरी टोमेटो। इससे आपकी आमदन भी बढ़ जाएगी और आपको मुनाफा भी हो जाएगा। जी शुक्रिया जनाब। प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसी तरह, अगर आप डेमो पे वापस चले जाएं तो चैट और टिकट सपोर्ट भी है, कॉल और एक्सपोर्ट भी है। तो आप टिकट खोल सकते हैं, जो ऑफलाइन आवर्स में आप सपोर्ट के लिए सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऐसे लिए ऑन साइट कंसल्टेशन, जिसमें एक्सपर्ट आपकी साइट पे आके विजिट करेगा, उसका भी सपोर्ट है। और आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं आपके, उनको भी यहाँ पे टाइप करके या डिक्टेट करके बोल सकते हैं। जैसे अगर कोई फार्मर भाई हो यहाँ पे जो कोई सवाल पूछना चाहता हो किसी के बारे में। हाँ, आप वहीं से माइक। सर मेरा नाम बशीर अहमद भट्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ। मैं एक फार्मर हूँ, तकरीबन मैं 20 साल से एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ। मेरे पास ओपन फील्ड भी है
और सेमी हाईटेक भी है, एक हाईटेक भी लगा है। अगर मैं जानना चाहूँ कि मुझे एक हाईटेक में जो एक कनाल पे लगा है उसमें कितना सीड रेट हम लगा सकते हैं, क्या हम इस ऐप से हम जान सकते हैं? किस चीज का सीड रेट? हाँ, क्या ये खीरा, खीरे का, कुकम्बर। कुकम्बर का। तो हम अपने FAQ सेक्शन में कुकम्बर सीड रेट सबमिट करते हैं और ये अभी हमें दिखा रहा है कि व्हाट इज द सीड रेट ऑफ क्यूकम्बर। 2 से 4 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से आप ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बटन भी है जहाँ पे ये आपको डिक्टेट करेगा आपकी लैंग्वेज में भी, आप सुन भी सकते हैं इस आंसर को। थैंक यू। अंजुम जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सपोर्ट के साथ अमन हाई क्वालिटी एप्पल्स जरूर प्रोड्यूस कर पाएगा, बट ये सब तो तभी काम आएगा जब उसकी कमाई अच्छी होगी। क्या उसे अपने प्रोड्यूस का फेयर प्राइस मिलेगा? हमने इस कंसर्न को भी एड्रेस किया है। अब अमन घर बैठे मंडी में एप्पल्स और बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियों की रेट्स रियल टाइम में देख पाएगा। इतना ही नहीं, वो आने वाले वक्त में एप्पल की रेट्स कैसी रहेंगी इसकी प्रिडिक्शन भी ऐप से पा सकता है। जैसा मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा, हम क्रॉप प्राइसेस को क्रॉप के हिसाब से, तो अगर हम एप्पल सिलेक्ट करें और ये चेक करें एप्पल मीडियम की रेट, तो हमें मंडीज जो अलग अलग जगहों पे हमारी यूटी की हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, वहां पे लाइव रेट्स क्या है, और हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं नियरेस्ट मंडी से भी और बेस्ट प्राइस से भी, कि सबसे बेस्ट प्राइस कहाँ मिल सकता है और सबसे नजदीकी मंडी में क्या प्राइस है। ऐसे ही क्रॉप प्राइस में हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जानना चाहूं कि गांदरबल की मंडी में मेरे एप्पल की मॉली वैरायटी जो इस टाइम राइप हो गई है, मॉलीज डिलीशियस, अगले हफ्ते उसका रेट गाइड दे रखी है जो आपको बताएगी कि प्रोसेस कैसा है। उसके बाद आप गो टू पोर्टल करके उस पोर्टल उद्यमी मित्र पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा यूटी का पोर्टल है किसान साथी, उसमें भी ये ऐप आपको ऑर्गेनिकली वहां लेके आपकी एप्लीकेशन सबमिट करा सकती है। जो हमारे किसान साथी डिपार्टमेंट की यूनिट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हमारे सारे डिपार्टमेंटल यूनिट्स, चाहे एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, उनकी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, मान लीजिए हॉर्टिकल्चर में मेरी नजदीक की नर्सरी कहाँ है, वो सारी नर्सरीज की लोकेशन इस ऐप में दी गई है। और किसी भी नर्सरी पे अगर आप क्लिक करें, इसमें बहुत सोच, टाइम और मेहनत लगी होगी। हाँ बिल्कुल, इस इनिशिएटिव की सफलता में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, HADP मिशन डायरेक्टरेट और बाकी के सभी डायरेक्टरेट्स भी, हमारी दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, बैंक्स और बाइसैग और माइटी की बेहतरीन टीम्स, इनके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को हमें भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने यूटी भर में KKG सेटअप किए हैं। हम दिल से उन्हें शुक्रिया और मुबारकबाद देते हैं इस ग्रैंड लॉन्च के लिए। हमारे प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। Thank you, Dr. Andrabi and Ms. Pranjal, for such a brilliant presentation. This initiative shall prove to be a game changer for the farming sector of Jammu and Kashmir. I now have the honor of welcoming the dynamic and empathetic Chief Secretary Jammu and Kashmir, Shri Atal Dullu Saab, for an address. Honorable Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Sahab, Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Shri Krishnan Ji, Adarniya Dr. Mangala Rai Ji, Chairman Apex Committee, Adarniya
डॉक्टर अशोक दलवाई जी, चेयरमैन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी, श्री शैलेंद्र कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मिस येशा मुदगल, मिशन डायरेक्टर HADP एंड कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म, यहाँ बैठे हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और यहाँ पर आए हुए किसान भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में 70% जो लोग हैं उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स पर चलता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये 70% लोगों को लाइवलीहुड देता है और इसका कंट्रीब्यूशन GDP में, स्टेट की GDP में लगभग 18%। इसी सेक्टर को कैसे ग्रोथ के पाथ पर लिया जाए, एग्रीकल्चर आउटपुट कैसे बढ़े और फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, इस पर विचार करने के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार एक एपेक्स कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी ने की, जिसमें डॉक्टर अशोक दलवाई जी भी मेंबर थे और कई सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स देश भर के उसमें मौजूद थे। और लगभग 2-3 महीने के कड़े प्रयास के बाद इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट की उस प्रोजेक्ट के को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम दिया गया। इस पर कुल मिलाकर 5,000 करोड़ 5 साल में खर्च किए जा रहे हैं और ये ऑनरेबल LG साहब क्या ही विजन था और उन्हीं की डायरेक्शन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बना और ये आज इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 6 स्ट्रेटजीज पर जोर दिया गया। एक सबसे पहले सीड के साथ आता है आपका प्लांट मटेरियल, इसके साथ आता है आपका सीमेंट, इसके साथ आता है आपका ये जो फिश का आइडोवा। तो इसकी क्वालिटी को, जर्म प्लाज्म को कैसे इम्प्रूव किया गया, बेहतर किया जाए और इसकी अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए, ये एक स्ट्रेटजी थी। दूसरी स्ट्रेटजी थी कि हमारा जो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसके मुताबिक जो हमारे कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं जम्मू कश्मीर को, उसको कैसे हार्नेस किया जाए। तीसरा इसमें जोर दिया गया वैल्यू एडिशन पर और कलेक्टिवाइजेशन पर। चौथा इसमें जोर दिया गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर। पांचवा इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की जा रही है टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर, R&D पर। इन 5,000 करोड़ में से लगभग 900 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य जम्मू और स्वास्थ्य कश्मीर के माध्यम से किया जाएगा। और छठा जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर था वो था स्किल डेवलप। उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, इसके बड़े क्लियरली ये डिफाइंड थे कि 5 साल में हमारा जो GSDP का कंट्रीब्यूशन है लगभग 30,000 करोड़ बढ़ जाएगा, लगभग डबल हो जाएगा। इसी तरह 2,87,000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। इसी तरह 19,000 के करीब एंटरप्राइजेस, एग्रीप्रेन्योर्स कायम किए जाएंगे, एंटरप्राइजेस क्रिएट किए जाएंगे। चौथा, जो 13 लाख किसान परिवार हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी इनकम का एनहांसमेंट और स्टेबलाइजेशन किया जाएगा और इसमें खास ध्यान दिया जाएगा मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स पर, जिनकी संख्या लगभग 2,60,000 है। और पांचवा आउटपुट ये था कि लगभग 2.5 लाख यूथ को और फार्मर्स को इसमें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी जोड़ा जाए। और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आई, इसमें 3 स्ट्रेटजीज को फॉलो किया गया। एक, सबसे पहले एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। आप जानते होंगे कि किसान संपर्क अभियान 3.0 भी अब चल रहा है, तो लगभग हर पंचायत में कार्यक्रम हुए और हो रहे हैं और अभी तक लगभग 7 लाख किसानों ने इसमें भाग लिया है और बड़े चाव से भाग लिया है। और इन लोगों का डेटा भी हमारे पास कैप्चर्ड है कि उनकी क्या क्या डिफिकल्टीज है, क्या क्या एसेट्स उनके पास हैं, उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, ये सारा डेटा हमारे पास है। दूसरा जो इसमें स्टेप लिया गया इम्प्लीमेंटेशन में कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इम्प्लीमेंटेशन, एक पोर्टल बनाया गया किसान साथी NIC के द्वारा, जिसमें सभी एप्लीकेशंस, इसमें लगभग कोई 111 स्कीम्स हैं, जिसमें कोई बेनिफिशियरी
अप्लाई कर सकता है। और इन सभी स्कीम्स में अप्लाई उसको ऑनलाइन करना है, बड़ा आसान है इसमें अप्लाई करना। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, लगभग 1 साल और कुछ महीने में लगभग 2,70,000 एप्लीकेशन इसमें आई हैं, जिसमें से 1,70,000 एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। तीसरा जो इसमें स्किलिंग की मैंने बात की, एक और ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया दक्ष किसान, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनको स्कॉस्ट की फैकल्टी मेंबर्स ने बनाया, स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर। 312 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और ये मल्टीपल लैंग्वेज 5 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। और इसमें लगभग 3,300 वीडियो, और इसमें रिटन टेक्स्ट भी, हजारों पेज का रिटन टेक्स्ट है। और जो भी आदमी इसको, फार्मर या यूथ इसको लेता है, इस कोर्स को शुरू करता है, उसको टेस्ट भी देना पड़ता है पास करने के लिए। तो ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग अभी तक 42,000 किसानों ने इसमें एनरोल किया है, जिसमें से 21,000 किसानों ने कोर्सेज क्लियर भी किए हैं। अब एक ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, वो है ये किसान खिदमत घर, कि हमारी आउटरीच किसान तक किस तरीके से बेहतर हो सके। तो इस दिशा में मैं ये कहना चाहूँगा, एपेक्स कमेटी की जब डिस्कशन हो रहा था, ये डॉक्टर अशोक दलवाई साहब का ही आइडिया था कि किसान खिदमत घर हमको बनाने चाहिए यहाँ। तो एक वन स्टॉप सेंटर है, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देखा, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 500 किसान खिदमत घर का आज ये उद्घाटन हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर है, एक मल्टी एक्टिविटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, और इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो योगदान मेटी का रहा है, और खास तौर से बाइसैग का रहा है, वो हम उसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। और मैं मुझे लगता है कि एक यूनिक मॉडल उन्होंने डेवलप करने में उन्होंने हमें बहुत मदद की है। और ये भी मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ कि ये मॉडल डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को एक भी पैसा खर्च। और इसके अलावा आज यहाँ पर हमारे साथ 500 कृषि उद्यमी ये कियोस्क सेटअप करने के लिए, तो उनका रोजगार इसे चलेगा। तो 2,000 ऐसे कृषि उद्यमी हमारे कुछ महीनों में तैयार होंगे। 500 का आज उद्घाटन हो रहा है, और मेरी इसी मौके पर शुभकामनाएं सभी कृषि उद्यमियों को और सभी किसानों को कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसका भरपूर उपयोग करें और इससे आपका फायदा हो, ऐसा हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks a lot for such a marvelous session. These initiatives from inception till maturity will surely help us in giving wings to masses. It is indeed an honor to hear from you, sir. Now I'll request Shri S. Krishnan ji, Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, for his address. Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir, my good friend and colleague, Shri Atal Dallu, Chief Secretary of Jammu and Kashmir, Shri Mangla Rai, Chairman of the Apex Committee for the Holistic Agriculture Development Project, Shri Ashok Dalwai, formerly CEO of the Committee for Doubling of the Farmers' Income and currently member of the Apex Committee, Shri Shailendra Kumar, Principal Secretary of the Agriculture Production Department of the Government of Jammu Kashmir, Ms. Yasha Mudgal, the Managing Director of HADP Program, dignitaries present here, colleagues from various institutions of the Ministry of Electronics and Information Technology. It gives me great pleasure to be present here on this occasion to see the launch of what I think would truly be a path-breaking effort
for the whole country, not just for Jammu and Kashmir. There is a huge need. Farmers across the country, including where I come from, the one service that farmers constantly require is that of extension. They require information, up-to-date exposition of how exactly a farmer could benefit. And it is extremely user-friendly. It is easily available in the language that the farmer speaks, and it is something that they can easily interact with. And this is a very key effort in which MeitY as a ministry with all its organizations, including, and I speak now on behalf of BISAG and on behalf of NIC, which have supported this intervention. So it's a matter of great pride to us that we have been associated with this particular effort. In addition, I can also proudly say that the India Agri Stack, which is being developed as a digital public infrastructure and is something which will be available for farmers across the country, is seeing a front runner or a precursor here through the. अभी सेंटर का बजट आया था। बजट के एक दिन पहले पार्टी है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर इकोनॉमिक सर्वे देश का रखा जाता है। तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया, उसकी मूल बात ये थी कि जो निवेश आप करते हैं एग्रीकल्चर में और विशेष रूप से अनुसंधान और टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए, तो अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 13.85 रुपया होता है। यह देश में कहीं भी कोई भी खर्चा आप करें, उससे सबसे ज्यादा ही नहीं, कई गुना ज्यादा है। अगर 1 रुपया खर्च करके 2 रुपया जो है मिलता है तो लोग खुश हो जाते हैं। 3, 4, 5 की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ 13.85 नेट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड है। इसलिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने इस प्रायोरिटी सेक्टर में इस वरीयता के साथ अपने सीमित साधनों को लगाया है और निश्चित रूप से फल आपके सामने आ रहा है। हम आशा करते हैं कि देश के अनेक प्रदेश भी इस चीज को समझेंगे, क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की पढ़ाई जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट पे है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो जो शिक्षा है एग्रीकल्चर की, करीब करीब 90 सब्जेक्ट में आज एग्रीकल्चर में पीएचडी मिलती है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसको जितना जल्दी स्टेट समझें उतना ही स्टेट का भला होगा। परियोजना की बात आई, मैं जो हूं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा अटल डुल्लू साहब को, उनके साथ ही साथ जो मुख्य सचिव महोदय पहले थे, जो फाइनेंस कमिश्नर साहब थे, और आज के सचिव महोदय, जिस लगन और जिस प्रतिबद्धता के साथ इन समस्त परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। इसके रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो गए। जब सॉफ्टवेयर बन गया, एक खिदमत घर अगर 2000 में से आज 500 में बन गया, तो सब कुछ तो अब हो गया। इसको 2000 ले जाने में अब कितना समय लगेगा। ऐसे ही अनेक परियोजनाएं हैं। मैं शैलेंद्र जी से जगह कदा बात करता हूं और मैं उनको एक बात का याद दिला रहा था कि जो ट्राउट, जो क्लीन वाटर आपका आ रहा है, ट्राउट मछली
पैदा करने की जो परियोजना आपने ली हुई है, उसका कंपाउंड ग्रोथ रेट आपने 41% रखा है। 41%, अनहर्ड ऑफ। और यह अचीवेबल है। अगर इसे आप अचीव कर लेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि कितना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, कितना एक्सीलरेशन इकोनॉमी में होगा। और ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये आपका पानी जो है बहता चला जा रहा है। इसी तरह से अनेक परियोजनाएं जो 29 की 29 परियोजनाएं हैं, काफी मेहनत के बाद वो बनाई गई है। पर उनका गुणगान करना मेरा आज का काम नहीं है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 3-4 बातों का ध्यान देना आवश्यक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो खिदमत घर आप बनाए हैं, ये आमूल परिवर्तन लाएगा। पर इसमें अभी क्या कर रहे हैं आप? एक तो आप इंफॉर्मेशन से लोगों का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आप ज्ञान के रूप में परिवर्तित करके दे रहे हैं। तो दो ही चीज आप दे रहे हैं, एक तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरा नॉलेज दे रहे हैं। दोनों से काम चलने वाला नहीं है। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना और नॉलेज को जो है अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास। तो ये दोनों चीजें तो पहुंच गई आपकी पंचायत लेवल तक। आने वाले 1-2 वर्षों में सारी पंचायतों तक पहुंच जाएंगी। पर इस इंफॉर्मेशन और उस ज्ञान को समझ में कैसे विकसित किया जाए, तो किसान आपस में वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे पड़ोसी से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देती हूँ मोहतरमा रुमैसा जी को, जो शोपियां से है। गुड आफ्टरनून, आदाब। मेरा नाम रुमैसा अशरफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करती हूँ और मुझे पंचायत कॉपरेन के लिए एस कृषि उद्यमी जो है सिलेक्ट किया गया है। जो मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर साइंसेस फ्रॉम स्कॉस्ट कश्मीर। सर मेरा नाम रुमैसा अशरफ है। सर मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करती हूँ और सर मुझे कॉपरेन पंचायत के लिए एस कृषि उद्यमी सिलेक्ट किया गया है। सर मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर साइंसेस फ्रॉम स्कॉस्ट कश्मीर। आप क्या चाहते हैं? सर अभी तक मैं एक जॉब सीकर थी, लेकिन अब मैं जॉब प्रोवाइडर बनना चाहती हूँ। सर जब मैंने सर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जो प्रोजेक्ट नंबर 20 इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच के अंदर जो आप किसान खिदमत कर जो एस्टेब्लिश होने वाले हैं, और उसमें आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम एज के जो अपॉइंटमेंट। तो सर ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एज एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो है वो काम करें। एक तो अपनी फार्म कम्युनिटी को भी उनको सर्व कर सकते हैं, प्लस हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर किसी देश, किसी प्रदेश का कल्चर देखना हो तो वहाँ का एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में अगर कल्चर देखना हो तो हार्टिकल्चर देखिए, और हार्टिकल्चर में अगर कल्चर देखना हो तो फ्लोरिकल्चर देखना चाहिए। तो आप तो हार्टिकल्चर की हैं और फ्लोरिकल्चर भी हार्टिकल्चर में ही आता है। बिल्कुल ठीक है। यस सर। और जम्मू कश्मीर का हार्टिकल्चर जो है निश्चित रूप से नंबर 1 प्रायोरिटी पर है। तो आप जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है और जो यहाँ की परिस्थितियां हैं उसमें आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरह प्लेस्ड। जी सर, जी सर।
दूसरी बात जो हम आपको कहना चाहेंगे, हार्टिकल्चर का कभी अपने को आइसोलेशन में मत मानो। जी सर। यही विडंबना है, पूरी दुनिया की विडंबना। अगर आप यूएन को देखेंगे तो यूएन में भी जो है एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सब अलग है। जब डिफिनीशन यूएन की देखेंगे तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री एंड हार्टिकल्चर। इससे क्या हुआ है कि डिस्ग्रेस हुए। किसान जो है वो पोल्ट्री का भी देखता है, गोटरी भी देखता है, फिशरी भी देखता है, हार्टिकल्चर भी देखता है। वो समेकित समग्र क्या करिएगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है? एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, पिगरी, गोटरी, मार्केटिंग, ट्रेड, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितना आप इंटीग्रेट करें उतना इंटरेक्शन इफेक्ट ज्यादा। साइंस में इंटरेक्शन इफेक्ट 2+2 2+2 होल स्क्वायर का इंटरेक्शन जितना फायदा उतना ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। तो आप इंटरेक्ट करते रहिए। समेकित समग्र कृषि के उद्यान और विकास की दिशा में प्रशस्त होते रहिए। निश्चित रूप से आने वाला समय एग्रीकल्चर का ही है। इसीलिए पहली पार्लियामेंट में नेहरू जी ने यही कहा था कि एवरीथिंग नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो निवेश है मैं कुछ बोलना चाहता। 0.6% बजट बढ़ी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसके बारे में। इसीलिए जम्मू कश्मीर को बधाई दिया, औरों का नाम नहीं दिया, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप एग्रीकल्चर को आप नहीं मदद। इक्विटी, सोशल जस्टिस के बाद अगर रेंज है तो उसके बाद स्पोर्स जनरेट होंगे, उससे क्या हो सकती है। तो उससे पहले अगर हम कंटैक्ट स्प्रे जिसका प्राइस किसी स्प्रे का कम होगा, हम वो स्प्रे करवा के उस डिजीज का कंट्रोल करवा सकते हैं। मतलब अब जेनेरिक हमारा कंट्रोल नहीं है, अब एक वेदर बेस्ड डिसीजन सिस्टम होगा जिस फार्मर को हम पहले से हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी अब एक और है सर, मोहतरमा दानिश। अच्छा, मोहतरमा दानिश से दरखास्त है कि वो अपना इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानिश बशीर है। मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से कृषि उद्यान सेलेक्ट हुई हूँ और मैंने अपनी पीएचडी स्वास्थ्य कश्मीर से ही करी हुई है। अच्छा, हाँ दानिश जी, आप तो श्रीनगर से हैं। जी सर। वैसे तो ये सवाल करना आपको जायज नहीं कि आपको खेती बाड़ी के बारे में कितना ज्ञान है। आपने कभी किसी गांव में गए आपके ग्रेजुएशन के दौरान या मास्टर्स पीएचडी के दौरान? जी सर, किसी गांव में आपने फार्मरशिप किया? जी सर, मैं बिल्कुल गई हूँ। मेरे जो नानिहाल वाले हैं उनके पास एक अच्छा खासा जमीन है और उनका ऑर्चर्ड है, और जहाँ मेरी शादी अब हुई है उनके पास भी ऑर्चर्ड है। और मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं जिन्होंने हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए शुरुआत की है और उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। चलो बहुत अच्छा। अब क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपकी शादी भी हुई, आप ससुराल में भी हैं और फिर वहाँ पे आप उनको बता दें कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो कैसे आप कन्विंस करेंगे उनको या कर दिया उनको आपने कि भाई मैं अपना कुछ उद्यमी बनूं और मैं फिर कमाऊं आपके लिए, अपने लिए? क्या मोटिवेशन था आपका अपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है, उनका फील्ड है। अगर उनको लगेगा कि हमें कहीं से फायदा हो रहा है अपने खेत में, उनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर स्कीम है उनको स्कीम में बता सकती हूँ आप ये लाभ उठा सकते हैं, तो अगर उनको मिलेगा तो वो तो खुशी होंगे कि हाँ हमें मिल रहा है। ये भी तो कर सकते हैं आप कि अगर आपका बिजनेस काफी बड़ा और आपके ससुराल में और भी लोग हैं तो उनको भी आप जॉब दिला सकते हैं कि भाई आप भी हमारे साथ मेरे हाथ बटाएंगे। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं कि हम और अपने आप को भी एडजस्ट करेंगे और इंशाल्लाह दूसरों को भी मौका देंगे। श्रीनगर के किस इलाके में आपका है ये कृषि? सर मेरा ये नौगाम जो आ रहा है पंचायत, नौगाम में मेरा लाल मंडी में ये ऑफिस सेटअप है और नौगाम जो है पंचायत। अच्छा, नौगाम में। तो नौगाम तो एक रूरल इलाका है, बड़गाम के साथ भी थोड़ा सा एरिया बढ़ता है ना। चलो बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ये बताइए
आपकी जो है ना आमदनी के कौन से जरिए रहेंगे जो आपका जो वहाँ पे सर इसमें कोई देखा जो मैं CITH में SARF भी काम कर चुकी हूँ, मेरा फार्मर से बात काफी इंटरेक्शन था और उनका हमेशा आप देखेंगे उनको क्रेज बहुत है हाई डेंसिटी प्लांटेशन का। वो हमेशा ये कहते थे कि मैं क्योंकि वॉलेट पे काम कर रही थी, वो हमेशा कहते थे हमें ऐसे प्लांट्स प्रोवाइड करें जहाँ पे हमें जल्दी फसल मिले। उनको ये है कि बस हमें जाना है, हमें जल्दी जल्दी फसल मिले और वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए काफी क्रेज है। तो हम वो सारे स्टेप्स उनको बता सकते हैं, जैसे कि हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं इसमें सारे आ रहा है कि हम सीड से लेकर मार्केटिंग तक उनको हर स्टेप पे एड कर सकते हैं, तो उनको भी मदद मिलेगी। दूसरा जो ग्राफ्टिंग बर्डिंग की टेक्निक्स वो सीखना चाहते हैं ताकि वो हाइब्रिड प्लांट्स खुद भी जनरेट कर सके, अपनी नर्सरी अगर उन्हें स्टार्ट करनी है तो इसके भी हम दे सकते हैं कि वो ग्राफ्टिंग बर्डिंग की तरफ जाए। तो आप इस इलाके में ना बड़गाम भी एरिया आपका भी इलाका है वहाँ पे, तो आपको जो है ना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का काफी स्कोप है वहाँ पर, फ्लोरिकल्चर का काफी स्कोप है जिस एरिया में आप वहाँ पे हैं, है ना। अगर आप उसमें भी आ सकते हैं तो या आएंगे तो मुझे तो लगता है कि उसमें आपको काफी फायदा होगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जम्मू से भी कुछ किसान कुछ उद्यमी जुड़े हुए हैं जिनको अब हम बुलाएंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैं सबसे पहले दावत देती हूँ मोहतरमा निशा जी को जो कि उधमपुर से ताल्लुक रखती हैं। वो खुद को अनम्यूट करें और हमारे साथ बातचीत करें। Good afternoon, sir. Myself is Nisha. I belong to Udhampur district. And I am selected as a Krishi Udami for Panchayat Master. My education qualification is BSc. निशा आप अपने ब्लॉक का नाम बताइए और अपने विलेज का नाम बताइए जहाँ से आप बिलोंग करती हैं। Sir, I belong to Udhampur district and I am selected as a Krishi Udami for Panchayat Master. आपके गांव का नाम क्या है? मानसर। पंचायत भी मानसर है और आप मानसर के रहने वाले हैं? Yes, sir. मानसर लेक के साथ रहते हैं? No, sir. ये क्रिमची मानसर है सर, ये उधमपुर में आता है सर। आप क्रिमची मानसर से हैं। तो आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? Sir, my education qualification is BSc non-medical stream and BA from Jammu University. किस साल आपने ये पढ़ाई पूरी की और अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देंगे? नो सर, एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, एग्जाम देती हूँ सर, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती। एक्चुअली सर मैं बड़े रिमोट एरिया से फॉल करती हूँ, तो 67, 70 सर उससे आगे मैं जा नहीं पाती। और ये जो MD HADP है उनके बारे में आपको कुछ पता है, कौन है? HADP सर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स हैं। और HADP प्रोजेक्ट के MD कौन है? यशा मैम सर। यशा मैम को आप कैसे जानती हैं? सर वो HADP की, वो तो इसलिए उनका पढ़ा था मैंने। तो जब ये DC उधमपुर थी तो ये क्रिमची गई थी, आपको कुछ याद है? नो सर। नहीं, ये कहीं टूर करती नहीं थी, अभी भी टूर नहीं कर रहे। ओके। तो आपने ये फील्ड क्यों चुना अपने आप के लिए और इसमें कब तक जुड़े रहेंगे आप? ओके सर, आई एम बेसिकली फ्रॉम रिमोट एरिया और मेरी यहाँ पे शादी हुई है, तो ये भी एक फार्मलैंड एरिया है। तो मैंने ये देखा कि मेरे मायके में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इन लॉज और रिलेटिव इस साइड वाले ये प्रॉब्लम फेस ना करें, और मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं इनके लिए इनकी फार्मर्स की सेवा कर सकती हूँ, ताकि हमारा प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने अपनी फार्मर्स की जो इनकम है वो दोगुनी करनी है, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिल रहा है इनकी अपने प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए। तो आपने किसानों की क्या क्या सेवा करने का सोच रखा है, क्या मदद कर पाएंगे?
कैसे मदद कर पाएंगे? श्री एस सर जैसे ये ऐप है केकेजी का ऐप है तो वो उनको सिखाऊंगी कि ये तो एक डोर स्टेप होगा फार्मर्स के लिए तो सर उनको ये सिखाना है कि प्ले स्टोर में इसको कैसे करना है ताकि उनको सारी इंफॉर्मेशन सर इजीली अवेलेबल हो जाए क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इलिटरेट तो ये ऐप बहुत हेल्प करेगा उनकी कि उनको कैसे कहाँ से सीड लेने हैं कैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का कहाँ बैंक की उनको जानकारी सब इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी बाकी सर किसान खिदमत घर में आके तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा क्योंकि दिस इज अ वन स्टॉप सलूशन फॉर द फार्मर्स। कृषि में तो कोई सिंचाई के साधन है नहीं तो आप किसान खिदमत घर से सिंचाई का इंतजाम कैसे करें? सर ब्राउन है ये सब इरिगेशन सर रेन वाटर कंजर्वेशन और सर उधर बोलियां वगैरह भी बड़ी हैं पानी की कमी नहीं है सर वहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है सर कुछ इरिगेशन का क्या इंतजाम है ये बताइए? यस सर कृषि में इरिगेशन के क्या क्या इंतजाम हैं ये बताइए? सर पॉन्ड्स है और हैंडपंप है सर जिसमें बहुत सारा पानी है। हैंडपंप से खेती होते देखा नहीं? हैंडपंप से पानी घर को जाता है, सिंचाई के लिए तो हैंडपंप यूज होता नहीं। लेकिन सर बोली वगैरह है ये आपको पीछे से जो सिखा रहा है उसको थोड़ा सामने लाइए। सर बाकी उसमें जो और भी स्कीम्स हैं जैसे मशरूम वगैरह तो सर उसमें तो वो तो इजीली हो सकते हैं सर। तो लाहौर से उसको गांधरबल आना पड़ता था तो अब आप उसके यहाँ प्रोवाइड कर देंगे उसी पंचायत में तो उसके आने जाने का जितना किराया बच गया वो बच जाता है वो उसमें से कुछ हिस्सा आप चार्ज कर सकते हैं तो वो 1% 2% से ज्यादा नहीं होगा। इसका आपको जानकारी रखना चाहिए। 20% में तो वो किसान आपके जैसे ही देखेगा कि वो मेरी एग्री एंटरप्रेन्योर पंचायत वाली चली है तो वो आप उधर उसके घर की तरफ चलेंगे, वो उल्टे रास्ते भागेगा कि आकर के मुझे 20 रुपए मेरे से लेने आ गए। सर आवाज नहीं आ रही है। आपको किस किस फील्ड में काम करने का इरादा है? सर स्कीम्स में सर स्कीम्स के रिलेटेड सर मेरा जो पर्सनल जो मेरी दिलचस्पी है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्योंकि मेरा जो एमएससी में भी काम था वो इसी पे था कि हम किस तरीके से पेस्टिसाइड यूज जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड यूज का जो है बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट्स रहते हैं इकोसिस्टम पे भी और ह्यूमन हेल्थ पे भी। तो मेरा जो जोर ज्यादा रहेगा वो इसी चीज पे होगा कि हम किस तरीके से पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड का यूज होता है कि नहीं? जी सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं होता, कुछ कॉपर बेस्ड फंजिसाइड्स जो है एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसमें मेंशन किया गया होता है कि हम कौन से पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं लेकिन उसमें केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड नहीं यूज करते। जी सर उसमें बायो फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं। तो वो चीज बताइएगा, ये नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड नहीं यूज होता है, एकदम होता है, फर्टिलाइजर यूज होता है लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज होता है। तो वहां पर नाक मत कटवा दीजिएगा, स्क्वाश की नाक कट जाएगी कि जी उन्होंने हॉर्टिकल्चर में एमएससी किया है लेकिन ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज केमिकल पेस्टिसाइड का यूज। जी और आपके घर में कौन कौन लोग हैं? आपके घर की आमदनी कितनी है? और मेरा एक छोटा भाई। आपके वालिदैन क्या करते हैं? सर उनका बिजनेस है हार्डवेयर का। तो वो कितनी कमाई कर लेते हैं? सर कमाई तो बिजनेस में वैरी करती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट और डिमांड्स क्या है, तो सालाना तो 1-2 लाख होता है। सालाना 1-2 लाख? जी सर।
तो आपके घर में 1 महीने का 10,000 रुपए आता है और उन्होंने उस 10,000 रुपए से आपको पढ़ा भी लिया एमएससी एग्रीकल्चर करा जी 30,000 तक माहाना। तो बढ़ गया ना साढ़े महीने का 10,000। और आप कितना कमाने का ख्वाब देखते हैं? सर जितना हम इसमें एफर्ट डालेंगे हम उतनी इसमें कमाई कर सकते हैं। आपके इलाके में ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने की बहुत छोटी शुरुआत की हो इस फील्ड में और फिर बहुत आगे तक गए हो? जी सर। सर लार इलाके से एक जैतूना बेगम उनका नाम है, उन्होंने एक हाईटेक नर्सरी की शुरुआत की है और उनको मदद एचएडीपी के एक प्रोजेक्ट से ही मिली है, तो आज वो माहाना लाखों में कमाती है। लाखों माने? जी सर। लाखों माने? लाखों में 1-2 लाख का उनका मंथली इनकम जो जनरेट हो जाता है। तो आप नूना की हैं, तुलमुला से कितने दूर हैं आप? सर तुलमुला में डेयरी का ज्यादा इम्पैक्ट है, वहाँ पे पशुपालन की तरफ ज्यादा है और मिल्क प्रोड्यूसिंग विलेज है वो गांधरबल का। और वहाँ के किसान कितने खुश हैं? वो आप गए हैं कभी वहाँ? जी सर। तो उन किसानों को की आमदनी के बारे में कुछ अगर गए हैं तो बताइए। सर ये तुलमुला के बारे में नहीं मुझे जानकारी। सर वो मेरे पंचायत में नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरे को बुलाइए, आप बात करिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं शोपियान के डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल को बातचीत के लिए दावत देती हूँ। सिलेक्टेड ना उद्यमी के यूज बड़ी अच्छी है डेकोरेटिव ये माइक ऑन है, मुदस्सिर आप बोलिए। माइक ऑन है। गुड आफ्टरनून, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान में रहता हूँ। सर मुझे केकेजी शिरमाल के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो मैं बचपन से ही खेती बाड़ी से वाबस्ता रखता हूँ। हमारे घर के खुद हमारे खेत हैं जहाँ पे हम बागवानी करते आ रहे हैं और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसी फील्ड से है। मैंने बीएससी, एमएससी और पीएचडी हॉर्टिकल्चर सेक्टर से किया है फ्रॉम सुगाम जम्मू। मुदस्सिर आप काफी पढ़े लिखे हैं, आपने बीएससी, एमएससी, पीएचडी करी और आमतौर से तो पीएचडी के बाद तो कोई बड़ी नौकरी ढूंढते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई तहसीलदार, कोई केएस वगैरह करते हैं। तो लोग तो समझते हैं कि पढ़ाई इसीलिए करते हैं, तो आप यहाँ पे आ गए तो फिर कब तक इसमें चले गए आप? सर मेरा बचपन से ही इससे इंटरेस्ट था कि मैं एक फार्मिंग कम्युनिटी को शुरू करूं और दूसरा कि मैं लाइवलीहुड बहुत अच्छे से कमाऊं और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया हूं सर। और फिर लास्ट 4 साल से मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूं। मेरे पास पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के लाइसेंस भी है और हाइड्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं और हम सर जो ग्रोवर्स हैं उनको बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर नौकरी कर लेते तो कितने आमतौर से आपको तनख्वाह मिलती है और अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको कुछ अंदाजा है कि उससे ज्यादा कमाएंगे या? सर एक्चुअली मैं इससे पहले जॉब कर रहा था गुड़गांव में, तो मुझे 80,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी और जब मैं घर आया और जब हमने काम किया सर लगभग 25 से 30 लाख पर एनुअली हमारी सर इनकम हो रही है। आपके साउथ कश्मीर में कुछ बहुत अच्छे एग्रीप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एमबीए कहीं बाहर से किया है, देश से बाहर के, और आप एग्री बिजनेस में वहां पे काम कर रहे हैं। कुछ उनके बारे में आपको जानकारी है कि उन्होंने कितना बिजनेस में अपना कमिटमेंट दिया, डिवोट किया और बिजनेस से उनकी कितनी आमदनी, कुछ नाम है ताकि जो आपके लिए इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं? जी सर हमारे पिंजौर में एक है अदनान जी, सर वो एप्पल पे पैकेजिंग पे काम करते हैं, वो 50 लाख का सर उनका टर्नओवर है एनुअली सर। जी सर मेरा काम भी काफी इंप्रेस हुए हूं और मैं चाहता हूं कि हम भी कुछ ऐसा करें। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम कोशिश सरकार की हर पंचायत में एक किसान खिदमतगर होगा। तब आपको ये देख रहे हैं कि अपने पंचायत में आपने अपनी इतनी वैल्यू बढ़ानी है कि सारे लोग आपके पास आ जाए। तो आपकी क्या खास बातें होंगी आपके बिजनेस में जिससे आप कस्टमर्स को, फार्मर्स को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं? सर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है किसान खिदमतगर। सर मेरा ये मानना है कि वहाँ सारी फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल है कि हम बेटर से बेटर उनको फैसिलिटेट करेंगे फार्मर्स को। सर हम टाइमली अवेलेबल, अगर टाइमली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड सीड्स अवेलेबल मुहैया कराएंगे फार्मर्स को, वो उसे लाभ उठा सकते हैं। और डिफरेंट स्कीम्स है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उनकी अवेयरनेस
रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा इस पे जो है वो काम करे, उसे लाभ उठाएं। सर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर 10 किसान है, वहाँ पे 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं, 7,000 से ज्यादा वीडियोज हैं। सर वो पढ़ने और सुनने के बाद एक ग्रोवर उसमें बड़ा अच्छा लाभ उठा सकता है। आपके लिए जो सरकार ने बनाई है यहाँ पे किसानों के लिए KKG एप्लीकेशन, जिसका आज उद्घाटन लॉन्च होगा, तो आपने उसको देखा, उस एप्लीकेशन को, उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप किसानों को समझाएंगे और किसान जो है ना उनका लाभ उठा के फिर जो है ना अपने ज़राअत में और ज्यादा आगे बढ़ सकता है? जी सर, उसमें पहली फार्मिंग गाइड है कि हम फार्मर को, ग्रोवर को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए सूटेबल है, कौन सा क्लाइमेट, कौन सी एलिवेशन किस क्रॉप के लिए सूटेबल है। और सर क्या नाम उसका कैलेंडर ऑपरेशंस, इस सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमने कब कौन सा ऑपरेशन करना है और कैसे करना है। उसके बाद सर हमारा इंस्टेंट इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास डोमेस्टिक मंडीज की भी, और जो देश की जो मंडियां हैं, जैसे न्यू दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, कानपुर में है, डिफरेंट मंडीज जो हमारे पास है, वहाँ इंस्टेंट रेट्स क्या चल रही हैं, तो वो अगर हम शेयर करेंगे ग्रोवर्स के साथ तो वहाँ पे हम उनसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। चलो आपसे टेक्निकल सब पूछते हैं, और भी कई सारे हमारे जो कृषि उद्यमी होंगे और आप काफी क्वालिफाइड हैं और सारे लोग आपको इनपुट्स रखेंगे वहाँ पे, केमिकल प्लांट केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स। जी सर, तो आप किसानों को क्या एडवाइस करोगे, वो किस तरह से अपना डिजीज कंट्रोल और डिजीज मैनेजमेंट करेंगे? सर हमारा जो है डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम भी हमारे ऐप में अवेलेबल है। बिजनेस बनाने के लिए आपको जितने हमारे सब सेक्टर्स एग्रीकल्चर में, सब सेक्टर पर आपको ध्यान देना चाहिए। वो नेचुरल डिमांड है हमारे देश में और जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ विशेषकर जम्मू कश्मीर में छोटे किसान, वो तो इंटीग्रेटेड फार्मर्स है। ये स्वाभाविक होगा कि उनका रिस्क को डिवाइड करने के लिए जी, यानी एक क्रॉप को वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्रॉप्स करेंगे, हॉर्टिकल्चर करेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स करेंगे, पोल्ट्री सब करेंगे। तो इसका मतलब है आपको जो आपने ग्रेजुएट स्तर पर सीखा था, वहां तो स्पेशलाइजेशन नहीं था जी, तो आपने क्रॉप प्रोडक्शन सीखा, हॉर्टिकल्चर सीखा, इकोनॉमिक्स सीखा, सब आपको पोल्ट्री का भी कोर्स था, एनिमल हस्बेंड्री भी कोर्स था। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप वापस जाइए, ये MSc हॉर्टिकल्चर भूल जाइए, पहले BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर में जितने कोर्सेज आपको पढ़ाया गया था ना, वो थोड़ा याद करिए तो आपको पता चले। और एक है, आपको वैल्यू चेन ओरिएंटेड एंटरप्राइज बढ़ाना चाहिए, जैसे यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया गया। वैल्यू चेन का मतलब है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीनों सेगमेंट जो है, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हम उसको कंपार्टमेंटलाइज किया था। यही एक कारण है कि हमारा कृषि में जितना उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हुआ। तो पहली बार अब हम इनकम ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड एग्रीकल्चर को के बारे में सोच रहे हैं। तो आप ये जो सीड से मार्केटिंग तक, ओके, तो यही तो वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन तो इकोनॉमिक में इट इज शोन एज सम मिस्टीरियस स्टेटमेंट, नहीं, इट इज कॉमन सेंस। ठीक है, तो अगर एक दो चीज आप याद रखेंगे, एक सब सेक्टर्स को वैल्यू चेन, ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा जितने हमारे और जितना अपलोड जी से तो निश्चय आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। साथ साथ आप भी खुद एंटरप्राइज शुरू करिए, खाली एडवाइजरी नहीं, आपका भी कुछ होगा। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है और डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करते हैं ना जी सर, तो खुद आप बी कीपिंग हो या मशरूम कल्टीवेशन हो या छोटा पैकेट पोल्ट्री हो या कुछ स्मॉल प्राइमरी प्रोसेसिंग हो, वो भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए ताकि जो लोग आएंगे आपके पास उनको आप दिखा सकते हैं और आपका उनका भरोसा और ज्यादा जीतना है। थैंक यू मच, ये सब बहुत अच्छे सुझाव है सर। अब मैं शोपियान के मुदस्सिर इकबाल साहब को बातचीत के लिए दावत देती हूँ। गुड इवनिंग, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान का रहने वाला हूँ। मुझे पंचायत
शिरमाल के लिए एज ए KU अपॉइंट किया गया है। सर बचपन ही से मैं खेती बाड़ी से वाबस्ता हूँ। हमारे घर के खुद के खेत हैं जहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑर्चर्डिंग के क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। सर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ही है। मैंने BSc, MSc और PhD हॉर्टिकल्चर फ्रॉम स्कॉश जम्मू किया है सर। PhD करने के बाद आप कृषि उद्यमी को बनना चाहते हैं, स्कॉश जम्मू या स्कॉश कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? सर मेरा पहले से ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं फार्मिंग कम्युनिटी को शुरू करूं और खुद भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करूं। सर मैंने प्राइवेट जॉब भी सर गुड़गांव से किया है, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करी है। मैं माइंड सेट मेरा ये है कि मैं प्राइवेट एंटरप्राइज स्टार्ट करूं जिससे मैं फार्मर कम्युनिटी को शुरू करूं सर। तो उद्यमी बनने का संकल्प आपने ले लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, मेनी थैंक्स। जी बहुत उत्तम प्रश्न। ये चुप रहे। दुनिया में मशीनरी जो आई हेगी, इसके नाम सुने? जर्मन इंटरस्टेगर और अल्माइट। दुनिया की यही 3 टॉप। हेगे कौन था? हेगे प्लांट लीडर था। और वो जब अपना एक्सपेरिमेंट करने जाता था, डाली से खुदेगा तो बीच कोई